हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड हाउ टू सॉल्व देम. सो एज यू कैन सी, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन of the just a minute any differential equation of this form dy by dx is equal to some function of x and y f1 and some other function of fx and y f2. This type of differential equation is called a homogeneous differential equation of order 1 and degree 1. अगर आपको पूरा कहना है तो homogeneous differential equation of order 1 and degree 1, because यहाँ पे dy by dx is the only derivative, ठीक है, and the order of this derivative is 1, d1y upon dx1, right? Order is 1, degree is also 1 because इसकी power भी 1 है. So this is a homogeneous differential equation of order 1 and degree 1, where f1 and f2 must be homogeneous functions of x and y of the same degree. यहाँ पर f1 f2 दोनों के दोनों homogeneous functions होने चाहिए same degree के. मतलब अगर f homogeneous function है 4 डिग्री का तो f2 भी homogeneous function होना चाहिए 4 डिग्री का. ये लिखा हुआ है homogeneous functions same degree. Now what do we mean by homogeneous functions of x and y? इसके लिए आप we can understand homogeneous functions here. Here I wrote the definition of a homogeneous function of x and y of degree n. This, if any function which can be written in this form, जो इस form में लिखा जा सके, x की power n and some function of y by x, some function g नाम दिया मैंने, some function of y by x. Any function which can be written in this form is called a homogeneous function of degree n. ये n, ठीक है. This n will be called the degree of this homogeneous function. Examples: suppose we have function x cube into e to the power y by x. So we can see that we can compare this with this. We have n is equal to 3 and g is, what is g? G is e to the power y by x. Okay, so this is a function of y by x. So इसको आप g मान सकते हैं. So this is a homogeneous function because इसको ऐसे लिखा हुआ है already. Okay, so what will be the degree of this homogeneous function? This power of x, 3. So this is a homogeneous function of degree 3. Other example, x to the power 4 sine y by x. Here g is sine y by x. This is a function of y by x. So this is a homogeneous function of degree 4. Now this is a homogeneous function also. Why? Because this can be written in this form like this. देखो इसमें this is basically a polynomial of two variables, a polynomial of x and y. Here we have 3 terms, 1, 2, 3. Every term is of 4 degree. This term is of 4 degree. This term is also of 4 degree because y to the power 3 and we have x to the power 1. 3 plus 1, 4. So this is a 4 degree term. Again, this is a 4 degree term, 3 plus 1. So this is a polynomial where we have 3 terms and every term is of the same degree, 4, 4, 4. So this will be this can be written like this. ठीक है, हमने क्या किया, पूरे को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया एंड डिवाइड भी कर दिया like this. Okay, so we can write this like this. We will get what? X to the power 4 upon x to the power 4 into this. So this will be cancelled and we can write it like, sorry, this will be cancelled by this. यहाँ पे x बचेगा. We can write it like x to the power 4 बाहर है. This will become y by x. उसी तरह से x की पावर 4, this upon x की पावर 4 हो जाएगा y cube upon x cube and this upon x की पावर 4 हो जाएगा 1. So this can be written like this. So this is g. Okay, this because this is a function of y by x. ऐसा लग रहा है कि y by x एक वेरिएबल है यहाँ पे. Okay, so this is
a homogeneous function now of degree 4 बिकॉज इसको पूरे को हमने g मान लिया विच इज़ अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो आपको दोनों डेफिनेशन याद रखनी है, ये भी एक तरह की डेफिनेशन ही है। और अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो n विल बी द डिग्री ऑफ दैट होमोजेनियस फंक्शन, और अगर इस फॉर्म में लिखा गया है तो आपको ये देखना है कि हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। जैसे इसमें हर टर्म की डिग्री 4 है एंड दैट 4 जो कॉमन डिग्री है हर टर्म की वो हो जाएगा डिग्री ऑफ दिस होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको होमोजेनियस फंक्शन का। 2 डिग्री होमोजेनियस फंक्शन, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ 2 डिग्री होमोजेनियस फंक्शन बिकॉज एवरी टर्म इज ऑफ डिग्री 2। इसको अगर आप ऊपर वाली फॉर्म में लिखना चाहते हो तो देखो व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ एवरी टर्म 2, सो एक्स की पावर 2 बाहर कॉमन ले लीजिए, वी विल गेट हियर 1 एंड हियर वी विल गेट वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सो बेसिकली ये ऐसा हो गया एक्स की एक्स स्क्वायर एंड सम फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। सो दिस इज होमोजेनियस फंक्शन डिग्री 2। ओके, a homogeneous function of degree 5, this is a homogeneous function of degree 5। ठीक है, this can be written like this this। okay, now we come back to the homogeneous differential equations of homogeneous differential equations। अब हमारे पास homogeneous differential equation है, now we will learn how to solve these differential equations। तो आपको homogeneous differential equation solve करने के लिए ये याद रखना है कि आपको एक substitution यूज करना पड़ेगा y is equal to vx। okay, we will put y is equal to vx। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ y है वहाँ पर आप vx रखना है आपको। सो अगर आपने y रिप्लेस किया है मतलब आप डिपेंडेंट वेरिएबल को vx लिख रहे हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल y एलिमिनेट हो जाएगा, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन से गायब हो जाएगा और उसकी जगह पे v आ जाएगा। तो dy बाई dx भी चेंज होना चाहिए, राइट। सो फ्रॉम हियर डिफरेंशिएटिंग, अगर आप ये रख रहे हैं तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x we will get dy by dx is equal to d by dx of this, right। d by dx अब ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव विच इज़ 1 प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ये आपको डी वाई बाई डी एक्स की जगह रखना है। सो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम ये रखेंगे और y की जगह वी एक्स रखेंगे एंड तब ये y इक्वल टू वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये रखने पर दिस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बिकम अ न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल्स v and x and the new differential equation will be variable separable case जो हम पढ़ चुके हैं and then it will be easy to solve that differential equation। ये आपका basically working method है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है working rule। you can read these steps जो अभी मैंने बताया वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। okay, now we consider the first example। solve this differential equation। पहले इस differential equation को we can write like this, right, dividing both sides by x square plus y square, this becomes this। now we can see that this differential equation is like dy by dx is equal to f1 upon f2। जहाँ पे f1 ये है f2 ये है, this is f1, okay, and this is f2। so f1 is xy which is a homogeneous function of degree 2, sorry, of degree 1, so not of degree 2, sorry, because this can be written like this। ठीक है, so degree 2 homogeneous function, again this is a homogeneous function of degree 2 because यहाँ पे दो टर्म है, हर टर्म की डिग्री 2 है, so this is a homogeneous function of degree 2। therefore 2 degree homogeneous function, 2 degree homogeneous function, so this differential equation is a homogeneous differential equation of degree 2। ठीक है, and we know how to solve it। so यहाँ पे लिखा है which is homogeneous, मतलब ये homogeneous है। to solve it put y is equal to vx, so dy by dx हो जाएगा v plus x dv by dx, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये हम जैसे ही dy by dx की जगह ये और y की जगह vx रखेंगे by substituting these values the given equation, this differential equation becomes this, okay,
राइट हैंड साइड में यहाँ पे y की जगह वी एक्स रखेंगे, वी विल गेट दिस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देन दिस राइट हैंड साइड बिकम्स दिस। उसके बाद v हम दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ये रह जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे राइट हैंड साइड को एंड वी विल गेट दिस x dv by dx is equal to this. We cancel, we get this. Now we can see that this differential equation becomes this equal to this. This is a variable separable case, मतलब हम dv के साथ v वाले टर्म्स और दूसरी तरफ dx यहाँ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा dx क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ओके, सो dv के साथ v वाले फंक्शन और dx के साथ x वाले फंक्शन। नाउ दिस इज़ अ वेरिएबल सेपरेबल केस, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लाइक दिस, वी विल गेट दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, इंटीग्रल ऑफ okay, this can be written like -1 upon v cube and minus v square upon v cube. So this हो जाएगा। Again I have already told you that the final step of solving of a differential equation will be integration। कोई भी differential equation solve करने लगोगे आप किसी भी मेथड से, एट द एंड आपको इंटीग्रल तो करना ही है, ठीक है। तो इंटीग्रल में आपको एक्सपर्ट होना है, हर तरह के इंटीग्रल सीखेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि इसमें इंटीग्रल बहुत आसान है, बिकॉज हम बेसिकली ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि व्हाट विल बी द इंटीग्रल ऑफ दिस, इट विल बी x to the power n+1 upon n+1, राइट, where n is any real number not equal to -1। -1 अगर n है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा अगर आप n की जगह -1 रखेंगे। तो -1 के लिए अलग ही फॉर्मूला है कि x to the power -1 मतलब 1 upon x and dx and we know what it is log x, ठीक है। एनीवेज यहाँ पे तो -1 upon v क्यूब मतलब -v to the power -3 है और ये -v to the power -1 है, तो ये फॉर्मूला काम कर लेगा। तो इंटीग्रेट करना, लेफ्ट हैंड साइड इज़ द सम ऑफ टू इंटीग्रल्स। नाउ इंटीग्रल ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन वी क्यूब डी वी माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो ये इंटीग्रल बन गया 1 अपॉन 2v स्क्वायर, दिस इज़ लॉग v, दिस इज़ लॉग x, राइट, एंड प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाना होता है हमें, रिमेंबर, एंड दिस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज़ टोटली ऑन आवर चॉइस। हमारी चॉइस पर हम कैसे रखते हैं इसे। यहाँ पर 2 लॉग वाले टर्म दिख रहे हैं, तो हम आप चाहे इसे लॉग सी लिख लीजिए और यू कैन जस्ट राइट इट लाइक सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लास्ट फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो एक नहीं होता है, बहुत तरह के। जैसे कुछ स्टूडेंट्स यहीं पे इसे छोड़ देंगे कि दिस इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज़ द फाइनल आंसर वेयर v इज इक्वल टू y बाई एक्स। कुछ स्टूडेंट्स इसको थोड़ा और आगे यहाँ पे कहेंगे कि दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन, कुछ और आगे ले जाएंगे कि दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन। तो ऑल आर द फाइनल सॉल्यूशन और ऑल आर द सॉल्यूशन, ओके। सो इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। सो ये हो गया। एंड रिमेंबर लॉग के फॉर्मूलाज वी नो, log of mn होता है log of m प्लस log of n, एंड log of m by n होता है log of m माइनस log of n, एंड log of m to the power n होता है n log n। इसको आपको याद रखना है। तो यूजिंग दिस वी कैन log v जो आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास हो जाएगा log x प्लस log c प्लस log v, वो हो जाएगा ये बाई दिस, ओके। सो वी गेट दिस। ना लास्ट में रिमेंबर दैट हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो y और x में थी, बट यहाँ पर अभी v है, तो v की वैल्यू में वापस रखना है। हमने y इज इक्वल टू वी एक्स रखा था, यहाँ से v हो जाएगा y बाई एक्स, तो v इज इक्वल टू y बाई एक्स रखा, दिस बिकम्स दिस,
यहाँ पर भी v की जगह y by x रखा, this become this. So we get this equal to log cy. So cy will be e to the power this. So this is the answer. This is the answer. This is the answer. Okay, this is the answer. तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है. इसी तरह से सेकंड एग्जांपल आप देखेंगे. दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज बेसिकली दिस. इसको हम राइट हैंड साइड में लेंगे. एंड नाउ दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. व्हाई? बिकॉज दिस इज f1. what is f1? minus x square minus 3y square. This is a 2 degree homogeneous function because हर टर्म की डिग्री 2 है. ये भी हर टर्म की डिग्री 2 है. x square y square, यार remember. So this is a homogeneous function of degree 2. This is a homogeneous function of degree 2. So this is a differential equation of degree 2. How will we solve it? Put y is equal to vx and dy by dx is equal to this. This differential equation becomes this. सिंप्लीफाई करते रहेंगे. वी विल गेट दिस इक्वल टू दिस. v यहाँ आ जाएगा तो और सिंप्लीफाई किया. फाइनली वी विल गेट दिस विच इज़ अ वेरिएबल सेपरेबल केस. सो dv के साथ v वाले कर दिए, dx के साथ x वाले कर दिए. ओके, यहाँ पे बेसिकली इन्होंने dx को इधर ले जा सकते थे. इसको ये ऐसे हो सकता था इक्वल टू माइनस dx अपॉन x. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. खैर नाउ now we reach to the integration part. Okay, अब इंटीग्रल करना है दोनों साइड. this integral plus this integral equal to integral of this right hand side में हो जाएगा c. अब ये इंटीग्रल कैसे निकालना है? this is the question. okay, इंटीग्रल dx अपॉन dx तो log x हो जाएगा. ये इंटीग्रल हो गया कांस्टेंट c. एंड what it is, देखो अगर इसकी जगह पे ऐसा होता, मतलब डिनोमिनेटर में v प्लस 1 क्यूब नहीं होता, ऐसा होता सपोज, तो ये बहुत आसान होता. क्योंकि बिकॉज जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो न्यूमिनेटर है. राइट, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज़ व्हाट? dv का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v इज़ दिस. एंड v क्यूब बाई 3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v इज़ दिस. तो ये बहुत आसान होता है. हमें क्या करना होता है इसको सॉल्व करने के लिए? जो डिनोमिनेटर है उसको कुछ मान लेते हैं, सपोज u. ठीक है, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दिस गिव्स अस 3 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन 3 इज सॉरी एंड dv okay is equal to du like this. Like this. Okay, and this gives us this. तो यहाँ से पता चल रहा है कि 3 प्लस वी स्क्वायर डी वी, मतलब 3 प्लस वी स्क्वायर डी वी, इसकी जगह हम डी यू रख देंगे. तो ये जो इंटीग्रल है दिस विल बिकम डी यू अपॉन यू विच इज़ लॉग यू. ठीक है, तो जब इस टाइप के इंटीग्रल होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तो हम डिनोमिनेटर को कुछ मान लेते हैं, u या t या कुछ भी. ठीक है, एंड तो बहुत आसान हो जाता है. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. v प्लस 1 क्यूब का डेरिवेटिव 3 प्लस वी स्क्वायर नहीं है. हाउ विल वी सॉल्व इट? वी नो हाउ टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस. इसमें आपको इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे. 3 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस 1 क्यूब, ये इन्होंने पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ऐसा हो गया. बट इसको आपको समझना होगा ये कैसे हुआ. ओके, पार्शियल फ्रैक्शन का सबसे बड़ा देखो, हमें 3 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 क्यूब को समझना है. इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है? पहला रूल है कि डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से बड़ी होनी चाहिए. ये ऑलरेडी यहाँ पर है. डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है. अगर आप वी प्लस 1 की पावर 3 खोलेंगे सो इट विल बिकम अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 एंड दिस इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. सो डिनोमिनेटर की डिग्री ऑलरेडी ज़्यादा है. अगर नहीं होती तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ता है पहले. एनीवेज यहाँ पे तो डिग्री डिनोमिनेटर की ज़्यादा है. सो वी विल डू लाइक दिस. इसको इक्वेशन कुछ नाम दे दो, इक्वेशन 1. नाउ लेट दिस इज इक्वल टू, अब देखिए नीचे v प्लस 1 क्यूब है तो ये हो जाएगा लेट दिस इज इक्वल टू a अपॉन v प्लस 1 प्लस p अपॉन v प्लस 1 होल स्क्वायर
plus c upon v plus 1 whole cube like this। उसके बाद आपको a b c की वैल्यू निकालनी है। कैसे? राइट हैंड साइड में जो तीन फ्रैक्शंस हैं इनका एलसीएम हो जाएगा v plus 1 होल क्यूब, और ये a के साथ आ जाएगा v plus 1 स्क्वायर एंड b के साथ आ जाएगा v plus 1 एंड दिस विल बिकम c। नाउ दिस बिकम्स v plus 1 होल क्यूब। ओके, नाउ इसको v plus 1 होल स्क्वायर ओपन करेंगे, दिस विल बिकम this and this will becomes b plus 1 plus c। okay, now you can see लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर है वही राइट हैंड साइड में भी डिनोमिनेटर है, और लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉलिनोमियल लिखा गया है, कांस्टेंट टर्म, फिर 1 डिग्री टर्म जो कि है नहीं यहाँ पे, फिर 2 डिग्री टर्म। तो हमें इस राइट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर है इसको भी पॉलिनोमियल की तरह लिखना है। ठीक है, तो पहले कांस्टेंट टर्म कैसे लिख लीजिए, वी स्क्वायर वाला टर्म लिख लीजिए ए वी स्क्वायर प्लस उसके बाद वी वाला टर्म 2ab प्लस बी वी, ये हो गया वी वाला टर्म। उसके बाद कांस्टेंट टर्म a इंटू 1 a b इंटू 1 b प्लस c, सो नीचे आ जाएगा v प्लस 1 होल क्यूब। ठीक है, और यहाँ लेफ्ट में ये चल रहा है। सो फाइनली वी गेट दिस इक्वल टू दिस। ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन इक्वल है, ये दिखा रखा है हमने, और दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है। सो अगर दो फ्रैक्शंस इक्वल हैं, उनके डिनोमिनेटर भी सेम है, सो इट मीन्स न्यूमरेटर भी सेम होना चाहिए। सो 3 प्लस वी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस। ठीक है, so from here we get this। now this is a polynomial, this is a polynomial, और हम कह रहे हैं कि दोनों polynomial इक्वल हैं। दो polynomial इक्वल कब होता है? जब सेम डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट्स, जब सेम डिग्री टर्म्स इक्वल हों। तो कि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के बराबर होना चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू इट मीन्स 3 होना चाहिए। वी स्क्वायर वाला टर्म के बराबर होना चाहिए, सो वी स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ वी स्क्वायर कोएफिशिएंट a है, इट मीन्स a इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ पर v का कोएफिशिएंट 2a प्लस बी है, यहाँ पर v का कोएफिशिएंट 0 है, सो इसका मतलब 2a प्लस बी 0 होना चाहिए। इनको सॉल्व करेंगे, देखो a तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो b आ जाएगा हमारा, यहाँ पे a की जगह 1 रखेंगे तो b इज़ -2, एंड फिर a और b की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो c भी कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली वी विल गेट व्हाट, यहाँ आप देख सकते हैं a की जगह 1 रखेंगे यहाँ पे, तो ये 1 अपॉन वी प्लस 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये 1 अपॉन वी प्लस 1 ही है। ठीक है, b की वैल्यू भी हमने -2 निकाली है, तो -2 अपॉन वी प्लस 1 स्क्वायर, -2 अपॉन वी प्लस 1 स्क्वायर, और इस c की वैल्यू 4 है। c की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो c की वैल्यू 4 आने वाली। सो इट मीन्स ये हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर ली है। ओके, सो फाइनली जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस तरह से बन चुकी है। नाउ वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस वी, इसका इंटीग्रल हो जाएगा इतना, इसका इंटीग्रल हो जाएगा इतना। अब यहाँ पे ये इंटीग्रल कैसे हो रहे हैं ये आपको इतना तो आना ही चाहिए, राइट। सो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक मैं बता देता हूँ कि ये वाला इंटीग्रल जो कि ये है, राइट, ये इतना कैसे हुआ। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये वाला पार्ट रफ में करना है, या फिर आप इतना तो ये मेंटल कैलकुलेशन होनी चाहिए। सो 1 प्लस वी अगर हम कुछ रख दें u, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी विल गेट 0 प्लस डी वी इज इक्वल टू डी यू, इट मीन्स डी वी इज इक्वल टू डी यू, राइट। सो दिस इंटीग्रल विल बिकम -2 इंटीग्रल डी वी की जगह हमने डी यू रखना है, और 1 प्लस वी की जगह हमने u रखना है, तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, नाउ ये हो जाएगा इंटीग्रल u की पावर -2 डी यू, सो दिस विल बिकम u टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, मीन्स माइनस माइनस कैंसिल, दिस बिकम्स 2 अपॉन u, एंड u की वैल्यू वापस रखेंगे 1 प्लस वी, तो 2 अपॉन 1 प्लस वी, so this becomes 2 upon 1 plus v। उसी तरह से ये भी करना है,
तो भाई ये पे ऐसे हो जाएगा, राइट। लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस ये हो गया, इनको सिंप्लीफाई किया, इनको इसमें से घटाया तो ये आ गया सी इज़ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जब आपने जीरो का इंटीग्रल किया था तो जीरो का इंटीग्रल कांस्टेंट होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो दिस इज़ द आंसर वेर यू कैन राइट v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और v की वैल्यू वाई बाई एक्स रखने पर ऐसा बन जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज़ द आंसर। ओके, सो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे सॉल्व किए गए हैं इस बुक में। You can pause and you can see every question. फाइनल में एक आगे एक्सरसाइज भी दे रखी है जिसमें बहुत सारे 15 क्वेश्चंस हैं बेसिकली, एंड सबके आंसर्स भी दे रखे हैं सो दैट आप श्योर हो जाएंगे आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं। सबके सब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस ही ऑब्वियसली, बिकॉज एक्सरसाइज 2C falls in the chapter homogeneous differential equations। सबके सब homogeneous differential equation है। कुछ special differential equation को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जैसे ये ओके दिस, जब आप टी एक्स को राइट साइड में ले जाएंगे फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो दिस विल बिकम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू minus 1 plus e to the power x upon y upon e to the power x upon y into 1 minus x upon y। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। Now this is a homogeneous differential equation again। Why? Because this is f1 and this is f2। This is a homogeneous function of degree 0। okay, because इसको लिख सकते हैं आप x की पावर 0 इंटू माइनस ऑफ दिस। ठीक है, ये पूरा का पूरा g है बेसिकली अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। x बाई वाई भी है, y बाई एक्स, बिकॉज x बाई वाई को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन y बाई एक्स। ठीक है, so f1 is basically x to the power 0 into minus 1 minus e to the power 1 upon y by x। so ये आपका g है, the function of y by x, right? so this is a 0 degree homogeneous function। similarly this is a 0 degree homogeneous function, इसको भी आप लिख सकते हैं x की पावर 0 into ये पूरा g है। so this is a homogeneous differential equation of 0 degree। अब कैसे सॉल्व करना है इसको, y बाई एक्स की जगह आपको v रखना है, तो ये क्या बन जाएगा, ये सॉल्व टेक्निक वही है, y इक्वल टू वी एक्स रखना है एंड डी वाई बाई डी एक्स इज जगह वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स रखना है। तो जब आप y इक्वल टू वी एक्स रखेंगे यहाँ पर तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, और यहाँ ये बन जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस y इक्वल टू वी एक्स रखेंगे x अपॉन वी एक्स, मतलब e टू द पावर 1 अपॉन v अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन v एंड माइनस 1 अपॉन v। ठीक है, उसके बाद v यहाँ आ जाएगा ऐसे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल केस बन जाएगा, इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा। सिमिलरली ये भी थोड़ा अलग है, इसको भी आप देखोगे, दिस इज a homogeneous function right hand side is a homogeneous function of degree 0। ये पूरा का पूरा g है, इसमें भी y इक्वल टू वी एक्स ही रखना है बेसिकली। ठीक है, तो ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज स्टूडेंट्स इसको देख के समझ नहीं पाते कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, बिकॉज ये 12 एंड 14 थोड़ा इनसे अलग है, राइट। सो दैट्स इट।